Please start settling down. You should be able to start in any minute now. Did we all have good refreshments here? Yes, we did. It's such a lovely area there, no? And it's such a lovely day also. You have a beautiful weather here in Delhi. I really feel bad to call you all back in, but we have to do this. I'm going to blame it on you because you had a lot of questions for Sridhar's session. Otherwise, I would have been able to give you a bit more time on the break. I think we are good to go. Yeah. Zoho, if there are any more people coming in, send them in and let's freeze and begin. Yeah? Lovely. So the session next is Stories from a Storyteller. We have Neelesh Misra here with us, and I'm going to tell you a bit about him. Neelesh is one of India's leading change makers who has constantly introduced new and socially impactful ideas that has positively impacted millions of people. He has spoken widely about the issues of rural India, put them out of obscurity through a series of content that combines groundwork and digital space. He wears multiple hats, one that of a journalist, one where he's an author of 5 books, a radio storyteller, a lyricist, marketing innovator, a live performer, among others. His initiative, Goan Connection Today, reaches 23 million people. Let me say that again. The Goan Connection Initiative today reaches 23 million people monthly across digital and print platforms. To give Neelesh a proper welcome, can we have Praval Singh onto the stage, please? Thank you, Mati. Thank you, everyone. A small note, I've been here already once. Don't want to bore you further, but just want to bring a side story on how this happened. So this year, when we thought of doing Zoholics in India, it is a user conference. Most of you are Zoho users already. You're coming here to learn about the product, the roadmap, get some support, meet us, all of that.
But we decided to add a little bit of flavor this year and get in each of the three cities, get someone who would inspire people, would inspire us and inspire you with what they do, what they've done, all of that. And in Mumbai, after Bangalore and Mumbai, when it came of Delhi, we thought who better than call Neelesh and hear from his storyteller. I've, I've been a fan of his stories. He's one of those few people whom many of us, I would say, has heard before we have seen him. So I was joking with him a half an hour ago that I heard your voice before I saw your face, which is not usual for most of us. So with that, Neelesh, the stage is yours. Please. Thank you so much. तो मेरा नाम है नीलेश मिश्रा कहानियां सुनाता मेरी जिंदगी खूबसूरत इत्तेफाकों और संभावनाओं से भरी है I think I'm on a journey that has had a lot of beautiful coincidences. I also believe that for a lot of us, we need to question at different points in our life, is this the moment that's going to change our life? I'm often, when looking behind, wondering about the things I've done, the things I want to do. एक संतोष होता है कि चीज़ें करने का लालच था, उनमें से बहुत चीज़ें कर पाए और एक आगे नई नई चीज़ें करने का की भूख भी रहती है 4 दिन पहले मैंने लिंक्डइन पे अपनी एक रैंट लिखी थी आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ी होगी कि ये जो डिजिटल और टेक वालों ने जितने धोखे मुझे ज़िंदगी में दिए हैं उतने मोहब्बत में भी नहीं मिले तो फिर मैं ये टेक वालों के पास आ गया हूँ दिल हथेली पे रख के मुझे खुशी हुई पिछला सेशन देख के प्रवाल का और मैं उससे कह रहा था कि यार मुझे तो तुम्हारी कई चीज़ें मुझ जैसे जो अनाड़ी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं डिजिटल नहीं समझते हैं उनके काम की चीज़ें हैं तो मैं ज़रा समझूंगा I just want to point out a couple of scattered moments from my life. इनमें कुछ शायद आपको अपने साथ ले जाने को मिले या शायद लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 1.5 घंटे दूर एक गांव में रहता हूँ मेरे घर का नाम है लो सनूडब्बी ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ This is what I feel when I'm there. Some of you might have seen the slow interview. Have you? और वहाँ पर मेरी बच्ची my daughter who is 7 now, she plays with mud, she plays with cows and goats and she lives in an environment that is shaping her childhood. We are in an era today where children are being sold the fear that if they do not start coding at 4, 5, and 6 years, their futures are ruined. We are in an era where hundreds of millions of dollars are being invested on companies that sell this fear. If you do not make your children code at 4, 5, and 6, their lives are ruined. This is the time where the creation of their brains is happening in a way that it will impact their entire life. This is the time where they need to learn to play with mud, tell stories, to touch and feel, to go out, to watch the butterflies, to smell the roses, immerse themselves in nature. And we are in an era where that childhood, I feel, is under attack. I'm a great opponent of this philosophy. मुझे बच्चों के बचपन को
कैसे बचा के रखना है, उनकी कहानियों को, उनके अनुभवों को, उनके स्पर्श को, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए. We are in an era where gambling apps, you can gamble on about cricket, you can gamble about various things where there are hundreds of millions of dollars riding on them. We are in an era where the purpose is one slide in the pitch deck, which founders cleverly slide in so that they can look cool and they can create a story that becomes very palatable and very, very, very nice to hear. So one of the questions that I am struggling with these days is, can profit and purpose coexist? Can decency be a business model? And do we incentivize decency enough in India? हमारे देश में लाखों लाखों ऐसे लोग हैं, मेरे माता पिता जैसे. I don't know if you know, my parents, my father gave up his life in Canada as a successful geologist. He discovered fossils that plugged a hole in Darwin's theory of evolution. It's another matter that neither Canada nor India honored him. But his discovery led to the creation of a World Heritage Site in the form of in Newfoundland in Canada. And it was his dream to create a school in his village. So he gave up that, he gave up his Ferrari, he gave up his next stage of his life, which was in America at the Geological Survey there, and came back to his village. Set up a school in a little hut. And my mother, who had never been to a village, she was from a feudal family. She and my father then together have changed tens of thousands of lives over the last 50 years. But people like these do not seek publicity. They don't know how to fill out CSR applications. They don't know how to get praise. They do not seek praise. That was never their purpose. And at some point, we begin to take them for granted. Because we tell ourselves, earning money is my job. Saving the trees is someone else's. Teaching impoverished kids is someone else's. I will throw waste from my car or leave the tap open or leave the light switched on. Someone else's job. Why is it mine? Because of this, decency is not incentivized in this country. ये तो एनजीओ लोग हैं यार, झोला छाप है, पेड़ बचाने की बात करते हैं. We were growing up, all these people who we thought were nutcases, who were talking about saving our environment and not cutting trees and saving water, we never cared a hoot about it. And today you have plastic bags inside fish. And today you're making Instagram reels and posting Facebook comments and posts about how worried you are about the environment. लेकिन बचपन में आपने और मैंने नहीं सुनी ना. अजीब लोगों की बात. अजीब लोग हैं. इनकी decency को कभी incentivize नहीं. Can technology help do this? Of course it can. Wherever we live, whichever village, whichever town, whichever neighborhood we are in, the digital revolution that we are witnessing and we are lucky to witness today gives us the opportunity to incentivize decency. Celebrate these people who are around us. They are creators, they are entrepreneurs. They are people who have solutions to some of the most pressing problems, including climate change, or they have adapted themselves to live with these problems. But decency is not incentivized. They will not make it to your reels. They will not make it
to your and my phone screen, because to come on your phone screen and my phone screen, you have to do a kacha badam or a baspan ka pyar. That's the sad reality. A folk creator from a village in Uttar Pradesh or Tamil Nadu or Nagaland cannot hope in hell to come on your phone screen or mine to narrate the songs that he or she has narrated to children, that children have gone to sleep listening to, the lullabies, the folk traditions, the songs that are related to birth and death and marriage. Because the algorithm is the new middleman. एक बिचौलिया होता था जब हम बड़े हो रहे थे, ये नया बिचौलिया है, the algorithm. He's not necessarily a bad guy. हर बिचौलिया बुरा इंसान नहीं होता है. But whoever is left behind by this algorithm, this new middleman, will forever be left behind, because that rural creator, whether he or she is creating content, whether he or she is creating jobs, employment, skills, whether he or she is creating things that you and I consume or eat, they cannot get on the waves of these algorithms. How do they do their SEO? How does that person sitting in Barabanki district make his or her banner for Instagram? He's never even heard of Instagram. But technology can now help this. So we are trying to make a small effort, and we will need partners like, or tools like Zoho. We've started something called the 10,000 Creators Project, where we want to show you and all the people who consume things, who eat things, who are buying honey or wearing a sari or buying a wooden toy, if you are not walking into Hamleys to find very overpriced and completely illogical toys and buying wooden toys, then how do they get on this huge internet marketplace where otherwise they will be forever left behind? How does the creator, वो जो कीर्तन मंडली में बैठा है, वो जो भजन मंडली में बैठा है, वो जो रामलीला कमेटी में बैठा है, वो जो बाउल सिंगर है, वो जो कवाली करता है, वो जो फकीर की तरह गाता है, लेकिन उससे रोटी नहीं मिलती है, उसको रोटी कैसे मिलेगी? उसको रोटी मिलेगी जब स्लो ऐप पे आप सर्च करोगे कि दिल्ली में जोहो का इवेंट है, यहां पर कोई भोजपुरी सिंगर है क्या, बड़ा मजा आएगा, ओके लेट मी सर्च भोजपुरी, और 10 आर्टिस्ट आ जाएंगे और उनका वीडियो आएगा, उनकी शो रील होगी जिनको हमने क्यूरेट किया होगा क्योंकि हमारा म्यूजिक लेवल होगा स्लो म्यूजिक, और आप बोलोगे ये बड़े बढ़िया लग रहे हैं, इनको बुलाते हैं, तो फिर आपके सबके सामने वो परफॉर्मर परफॉर्म करेंगे. तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी दूरी को तय कर देगा जिससे आप डिसेंसी को इंसेंटिवाइज कर पाएंगे, जिससे उस क्रिएटर को अपने आप को करप्ट, बास्टर्डाइज, कैरिकेचर नहीं करना पड़ेगा. ये संभव है. इतने सारे आइडियाज मेरे दिमाग में आते रहते हैं और मेरे पास न टेक्नोलॉजी है न पैसा है जिनसे उन चीज़ों को संभव कर सकें. आजकल ऐसे मुर्गे ढूंढता रहता हूँ कि इसको संभव कर पाएंगे. मेरी लेकिन सबसे बुरी आदत है कि मैं बहुत ट्रस्टिंग हूँ, ब्लाइंडली लोगों में विश्वास करता हूँ, पुराने जमाने का. पर इस उम्मीद पे चलता हूँ कि जो क्रिएटर्स हैं, जो ग्रास रूट्स क्रिएटर्स हैं, चाहे वो संगीत बनाते हों, चाहे वो कहानियाँ सुनाते हों, चाहे वो रागी के लड्डू बनाते हों या वो मिलेट्स के कुकीज बनाते हों जो आपको स्लो बाजार पे मिलेंगे, टेक्नोलॉजी ये संभव कर रही है कि उसकी भी इस दुनिया में एक जगह है.
that they also have a seat at the table. कि आप लोग भी अपना कुछ भला कर सकते हैं. आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहे हैं. मैं कुछ महीने पहले बस्तर गया था अपनी बेटी के साथ. मेरी बेटी वैदेही 7 साल की है. सिर्फ मैं और वैदेही गए थे और ये everybody predicted that it would be a disaster, including our family, my parents, her नाना नानी, everybody. कि मतलब अकेले जा रहे हो कैसे करोगे. तो मेरी और वैदेही की डील हुई कि वैदेही बस YouTube से मैं तुम्हारे बाल बनाना सीख लूंगा. उससे बड़े खूबसूरत लंबे बाल हैं. तो वो मैंने कोशिश की, मैं मिजरेबली फेल हुआ, मैं बाल नहीं बना पाया और चोटी नहीं बना पाया. लेकिन उसने बड़ी, वो एंटरप्राइजिंग है, तो होटल में वो डेस्क पे उसने एक दीदी को सेट कर लिया था जो पीछे कमरे में जाके उसके रोज बस्तर में बाल बना देती. और मैंने वैदेही से यही कहा था कि वैदेही हम सीखने जा रहे हैं, हम ट्राइबल्स के पास सीखने जा रहे हैं. When you change the narrative and tell your kids something like this, there is humility built into this conversation. मैं बड़ा नहीं हूं, वो बड़े हैं. आप और हम आजकल वो इंस्टाग्राम पे बोलते हैं वो सुपर फूड है भाई, वो मिलेट्स खाने की होड़ मची हुई है, मोरिंगा घोल के पीने की होड़ मची हुई है. ये और क्या कर रहा था भाई, वो सैकड़ों साल से और क्या कर रहा था, यही तो कर रहा था. वो आपके बहुत पहले से वही जीवन जी रहा है. पर उसकी बात कही नहीं कंटेंट क्रिएटर्स ने. उसकी बात बड़े शहरों तक, दुनिया तक आ नहीं पाई, टेक्नोलॉजी क्योंकि नहीं थी. और वो हाशिए पर रह गया, उसको आप कम समझते रहे. और मुझ जैसे लोग जो शायद कुछ हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस कॉन्वर्सेशन में इस ह्यूमिलिटी को, इस लर्निंग को वापस लाएं, टू स्टैंड विद दैट क्रिएटर. तो हम गए और कह रही कुम्हारों के गांव में गई जहां उसने मिट्टी से बर्तन बनाए. हम आर्टिजन्स के पास गए जो खादी से साड़ियां बना रहे थे. एक बड़ा खूबसूरत लम्हा था. बस्तर में they have these things called memory pillars. अब यूके के स्टोन हेंजेस का नाम आपने सुना होगा, फोटो देखी होगी. वो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बहुत फैशनेबल है. और उसके बहुत पहले से बस्तर में मेमोरी पिलर्स है. मेमोरी पिलर्स ऐसी चट्टानों के शिलालेख हैं जिसमें वो स्टोरी टेलिंग है, उनकी जीवन की कहानी लिखी है थी. इसके पास 2 गाय थी, इसको पानी बड़ा अच्छा लगता था, ये ऐसे जंगल में जाता था. ये चित्रों से बताया गया होता है. एंड दे बिलीव दैट व्हेन अ पर्सन पासेस ऑन, तो वो चिड़िया बन जाता है और वो चिड़िया बन के कभी उस मेमोरी पिलर को देखने आएगा, फिर उसको अपना जीवन याद आएगा, फिर वो उस गांव जाएगा और वो पेड़ से देखेगा कि मेरा परिवार खुश है, ठीक है, मेरा परिवार खुश है. इसको अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं? ग्रीफ मैनेजमेंट. सैकड़ों साल से उसको पता है कि ग्रीफ से, लॉस से कैसे डील करना है. लेकिन आज कोरोना के बाद अब इसको ग्रीफ मैनेजमेंट बोलेंगे. और किसी ने बताया नहीं मुझे इन मेमोरी पिलर्स के बारे में. ऐसा नहीं हो पाया कि मैं एक ऐप पे जाऊं और मैं एक ट्रैवल, एक जर्नी बुक कर सकूं कि मैं उन मेमोरी पिलर्स तक ट्रैवल कर पाऊं, ट्रैवल साइट्स के थ्रू उनको एक्सपीरियंस कर पाऊं और उनके बारे में दुनिया को बता पाऊं और उनसे क्या सीखा मैंने ये दुनिया को बता पाऊं. पर टेक्नोलॉजी अब ये संभव कर सकती है. आप में से बहुत से लोग वो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं या ऐसे वेंचर्स चला रहे होंगे जो ये सब कर सकते हैं. नई संभावनाएं. As we go back to basics, which is the only mantra I live by, whether it is content, whether it is products, whether it is experiences, if we go back to basics. And going back to basics is not, giving up technology at all, but going back to the essence.
of what those basics stood for. आप रेडियो पे मुझे कई साल से सुनते होंगे, और जगह रेडियो पे ऐसे शोज भी आते हैं जिसमें भाभियों को छेड़ते हैं लोग, आते ना। अब ये डिसेंसी कैसे, आप कैसे डिसेंट कंटेंट करो कि आपको एक साधारण सी कहानी जिसमें सब अच्छा है, भला है, डिसेंट है, how does that stand up to something that is alluring, titillating, that has slightly dark side built into it because it is alluring. OTT shows देखते हो आप, उसमें गालियां होती। मेरे को आजकल एक्टिंग के ऑफर आने लग गए। रेडियो पे एक्टिंग करता हूँ तो हाल में एक बड़ी सीरीज थी, उसमें मुझे एक ऑफर आया कि भाई आप इसमें एक पात्र निभाइए। मैंने कहा भाई मैं गाली नहीं दे पाऊंगा, यही मेरी शर्त है। तो वो मान गए। बॉम्बे गया मैं, पहला दिन वर्कशॉप हुई और डायरेक्टर ने कहा कि सर भर भर की गाली देनी है। मैं सोच रहा हूं मैं कहां फंस गया। वहां उसके बाद आपके सामने थोड़ी आके बोल पाऊंगा डिसेंसी इज माय बिजनेस मॉडल। आप बोलेंगे भैया वो तो ठीक है हुआ, तुम क्या कर रहे थे। I have to walk the talk. So I gave up that show. I was so inhibited. But how does decent content compete? हम मेहनत करेंगे, हमें मेहनत करनी होगी, हम क्रिएटर्स को, और आप लोगों को भी डिस्कवरी करनी होगी कि क्या हम वो लोरियां ढूंढ सकते हैं जो हम भी शायद कभी सुनते थे। क्या वो सोहर बनने ढूंढ सकते हैं हम? क्या वो कहानियां ढूंढ सकते हैं जिसमें स्टीरियोटाइप्स बिल्ट ना हो, जिसमें ये ना कहा गया हो कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये मुझ जैसे लोगों ने लिख दिया, हमने सुन लिया, और हम बड़े हो गए ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि हाँ सुंदर होने के लिए गोरा होना बहुत जरूरी है। और फिर हमारे सो कॉल्ड स्टार्स, हमारे सो कॉल्ड हीरोज यही बात टीवी पे बोलने लग गए। पहले दादियां नानियां ये बातें दबे स्वरों में बोलती थी, तो होर्डिंग पे आ गया। और हर एक लड़की, हर एक लड़का जिसका रंग डार्क है, उसको पता है कि जब वो कमरे में दाखिल होता है तो सामने वाला इंसान न उसकी पढ़ाई, न उसका संस्कार, न उसका चरित्र, न उसका इतिहास, न उसका परिवार, न उसका नॉलेज, किसी चीज को नहीं देख रहा है, सिर्फ उसके कलर ऑफ स्किन को देख रहा है। वो जानता है ये हम जैसे किसी आदमी ने किया है, जिसने वो लाइनें लिखी, जिसने वो वीडियो शूट किया, जिसने एक शाहरुख खान से बोला कि आप गोरेपन की क्रीम को एडवर्टाइज करिए, या एक ऋतिक रोशन से बोला, या फिल्मी सितारों से बोला, और उन्होंने किया without realizing their responsibility, without realizing how they were destroying millions of lives by doing so. Because decency is not incentivized. Because decency is not a business model. अब ऐसे में क्या करें? मेरी 7 साल की बेटी एक दिन पार्क से आई, बोली कि वो दूसरा बच्चा मेरे को मोती कह रहा था। उसका वेट थोड़ा बढ़ गया था, मुझे चिंता थी उसकी। लेकिन अगर 7 साल की बच्ची का दोस्त एक पार्क में उससे ये कह सकता है, इसका मतलब हम कम्युनिकेटर्स, हम पेरेंट्स बहुत बुरी तरह से असफल रहे। ये नई बात नहीं कह रहा हूं, ये आप सब ने देखी होंगी। हम और आप ओए कल्लू बोलते हैं ना, ऐसे भूल जाता ना आदमी कि उसका नाम तो महेश था, उसका नाम तो गोविंद है, उसका नाम कल्लू नहीं है। और वो बड़ा हो गया और हर एक आदमी ने उसको हमेशा कल्लू कहा, और यही उसकी पहचान बन गई।
कि एक आदमी जिसका वजन ज्यादा है या हाइट कम है या एक तरह से चलता है वो या गांव से आया है, उसका हम मजाक उड़ाते चले, अरे गांव वाला थोड़ी हूं भाई मैं, तो गंवार हूं मैं क्या, ये बोल के चले गए। चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं, ये बोल के चले गए, जैसे चूड़ियां पहनना कमजोरी की निशानी हो। लेकिन मुझ जैसे किसी इंसान ने फिल्मों में डायलॉग लिखे, टीवी के किसी एंकर ने बोला पाकिस्तान को पता हो जाना चाहिए कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। करोड़ों महिलाएं जिन्होंने चूड़ियां पहन रखी थी, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ये बचपन से जानती आई कि हमने चूड़ियां पहन रखी हैं, क्योंकि यही दुनिया कहती है हमसे। हम जो कम्युनिकेटर हैं, हमने डिसेंसी को, पर्पस को कभी अपना ध्येय नहीं बनाया। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे आप देखते हैं बड़े बड़े फिल्मी सितारे, क्रिकेटर्स, उसको हीरो बोलते हैं हम। ये हीरो नहीं है हमारे। वो हीरो कैसे हो सकते हैं जो एक गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करें, जिसके नीचे लिखना पड़े कि, मैं देख रहा था कल लिखा है कि प्लीज पे अटेंशन, कि ये आपकी लत बन सकती है। आपके लिए एक वाक्य है, उस सीटीओ के लिए, उस सीईओ के लिए, उस डेवलपर के लिए ये वाक्य है सिर्फ। लेकिन जहां से मैं इस दुनिया को देख रहा हूं, वहां एक 14 साल का लड़का, 12 साल का लड़का अपने घर से पैसे चुरा रहा है, क्योंकि आपने ये बनाया, क्योंकि आपके लिए डिसेंसी बिजनेस मॉडल नहीं था। कई बार हारा हुआ महसूस करते हैं हम लोग। मैं तो बहुत हारा हुआ महसूस करता हूं। इतना बड़ा आपके सामने अथाह पैसे, अथाह नेगेटिविटी का पहाड़ है, एवरेस्ट है। मुझ जैसे लोगों की क्या हैसियत है। लेकिन फिर जब एयरपोर्ट में, अनजान जगहों पे, स्कूलों में बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर मैं 3 साल से आपकी कहानियां सुन रहा हूं, या मैं 10 साल से आपकी कहानियां सुन रहा हूं और मैं बेहतर इंसान बन पाया हूं। या एक माँ आती है जो जो कहती है ये मेरा बच्चा है, ये ऑटिस्टिक है, और इसको मैं आपकी कहानियां सुनाती हूँ और उसका प्रोनाउंसिएशन, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। या कोई तस्वीर भेजता है कि ये मेरी माँ है या ये मेरे पिता हैं, ये देखिए आईसीयू में है, इन्होंने ब्लू या ग्रीन ड्रेस पहन रखी है और अभी ऑपरेशन थिएटर से आए, बहुत तकलीफ में है, लेकिन हेडफोन लगा हुआ है। मैंने इनको आपकी कहानियां सुनाई और उनके चेहरे पे जो हल्की सी मुस्कुराहट है, ये आपकी वजह से है। मैं शुक्रिया कहने के लिए आपको इनकी फोटो भेजी। या एक बूढ़ी दादी जो कलकत्ता से फोन करती है कि मेरे बच्चे अमेरिका में हैं, मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों में बिजी हैं, मैं अक्यूट डिप्रेशन में थी। या उदयपुर में लेमन टी की दुकान पे बैठ के एक बूढ़ी अम्मा आती हैं अपने बेटे के साथ स्कूटर पे और बोलती हैं हस्बैंड गुजर गए थे, मैं तो मर जाती। आपकी कहानियों ने जिंदा रखा। तो लगता है शायद डिसेंसी की कहीं जगह है। ये लगता है कि शायद अभी भी पर्पस को चाहने वाले हैं। हमारी भी जगह है। हम गालियां नहीं दिखा देंगे, हम सामने लोगों का अपमान नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि चिंकी आ गए, क्योंकि ये हमने किया था कि आज नागालैंड के, मणिपुर के लोगों को अगर दिल्ली शहर में घर नहीं मिलता, ये हमारा दोष है, हम क्रिएटर्स का दोष है। हमने अपनी कहानियों में, अपनी किताबों में, अपनी कविताओं में उनको जगह नहीं दी। दक्षिण के लोगों को उत्तर में जगह नहीं मिलती है, बंबई में आप चले जाएं तो किसी और हिस्से के इंसान को घर नहीं मिलता है, ये हमारा दोष है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी को देखता हूं तो लगता है कि नहीं, ये एवरेस्ट
चढ़ा जा सकता है। करोड़ों लोग हमें भी सुनते हैं, करोड़ों लोग इस जैसी चीजों की भी वक़्त करते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी वो सहारा बन सकता है? पिछले 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना पाऊं जिससे ये सारी चीजें हासिल कर सकूं। अभी तक नहीं सफल हुआ हूं, क्योंकि डिसेंसी इंसेंटिवाइज नहीं है। क्योंकि कोई फंडिंग अगर मैं लेता तो मुझे डर होता कि वो यही कहता कि यार थोड़ा सा तो कर दो यार भाई, थोड़ा सा एक सेंजुअल कंटेंट तो करिए ना, थोड़ा लेट नाइट स्टोरी टेलिंग करिए ना। नीलेश जी क्या कर रहे हैं आप? हस्की वॉइस है आपकी, करिए ना, थोड़ा सा हल्का सेक्सुअल करिए। तो फंडिंग नहीं ले पाए, ली नहीं फंडिंग। मिडिल क्लास का डर था। 3 साल पहले ट्विटर बायो में अपने एडिटिंग किया कि डिसेंसी इज माय बिजनेस मॉडल, पहली बार बिजनेस शब्द को डाला। अभी डर था कि बिजनेस तो बुरी चीज होती है भाई, बिजनेस में तो समझौता करना पड़ता है। यही सुन के हम बड़े हुए हैं ना। ये गलत था। अगले 10 साल में ये करने में लगाऊंगा कि नहीं, डिसेंसी बिजनेस मॉडल हो सकता है। लेकिन हम जैसे लोग जो भला काम करना चाहते हैं, और आप जैसे प्लेटफॉर्म, जोहो जैसे प्लेटफॉर्म, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ खड़े हों। आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा अधिकार है, द ओनस इज ऑन यू to stand by these lonely battles that are being fought in different parts of the country by people like me who feel so alone when they see an app with 400 million users peddling nonsense every day that is invading into the minds of your children, their children, and doing God knows what in the name of a business model, for God's sake. कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे। टेक्नोलॉजी हमें वो ताकत देगी, और टेक्नोलॉजी की दुनिया के भले लोग जो हैं वो साथ में खड़े होंगे। वो डेवलपर्स की दुनिया जो कहेगी कि यार मैं करता हूं ना, मैं बच्चे कहानियां सुन पाए इसलिए मैं एक ऐप बनाता हूं आपके साथ। बुजुर्ग लोग, डिस्कवरेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम है। पहली बार जब मेरा ये कहानियां एक ऐप पे आई तो मेरी मम्मी नहीं ढूंढ पाई मेरी कहानियां। मैं उस ऐप का स्टार आर्टिस्ट हूं, मेरी मम्मी नहीं ढूंढ पा रही। मैंने फोन किया उसके सीईओ को, मैंने कहा ये तो आपकी डिस्कवरेबिलिटी है, मैं आपके लिए एक नया ऑडियंस सेगमेंट ओपन अप कर रहा हूं, सीनियर सिटीजन्स जो खूब सुनते हैं मुझे, वो ढूंढ ही नहीं पा रहे। आपने सोचा ही नहीं कि भैया वो उनकी आंखें कमजोर है, वो कैसे ढूंढेंगे? एल्गोरिथम इज द न्यू मिडलमैन। आप भोजपुरी का फोक गीत सुनने चले थे और कब पोर्नोग्राफी में पहुंच जाएंगे नहीं पता आपको, क्योंकि वो एल्गोरिथम आपका हाथ पकड़ 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 के ले जा रहा है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी इंश्योर कर सकती है कि जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं, जो भला काम करना चाहते हैं, जिनको कभी वो मिलियन की रीच नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी तपस्या करते रहेंगे, वो लोग जो मेरे माता पिता की तरह गांव में स्कूल चला रहे हैं, या नदियों तालाबों को साफ कर रहे हैं, या रेलवे स्टेशन पे गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी है जगह। ये आपको संभव करना है, आपकी जिम्मेदारी है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम 1,000 लोगों तक पहुंचेंगे या 10,000 लोगों तक पहुंचेंगे या 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे या 100 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे, ये आप पे निर्भर है। कि ये लड़ाई और किसी तरह से लड़ी नहीं जा सकती। तो मैं माफी चाहता हूं, मैं आई गेट कैरिड अवे व्हेन I talk about content, when I talk about responsibility and purpose। कई बार हारा हुआ भी महसूस करता हूं, बहुत बार। लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे लोग, जो जैसी संस्थाएं,
इस महायज्ञ में मुझ जैसे जो हजारों लोग हैं, मुझसे बहुत बहुत काबिल लोग हैं, उनके साथ खड़ी रहेंगी। उनके जो बिजनेसेस हैं, वो जो वो जो छोटी टोकरियां बनाती हैं गांव में महिलाएं, हमारे यहाँ डलिया कहते हैं उसे, हाँ? वो डलिया अमेरिका भी तो पहुंच सकती ना। और वो जीएसटी कैसे देगी वो लेडी, ये बताइए। ये तो आप लोगों ने किया, जीएसटी तो देना पड़ेगा। वो इंस्टाग्राम का बैनर कैसे बनेगा, वो ट्वीट कैसे होगा, ये कभी मैंने देखा वो कर रहे हैं आप। यू आर स्टैंडिंग विद द क्रिएटर, से उम्मीद मिलती है मुझ जैसे लोगों को, मुझ जैसे बहुत पैशनेट, अक्सर हारा हुआ महसूस करते हुए लेकिन फिर भी उम्मीद का एक किनारा थाम के चलते हुए लोगों को उम्मीद मिलती है। तो बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप कर रहे हैं उसके लिए। और आप और भी जो चीज़ें कर रहे हैं जोहो के अलावा, जो जोहो से जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं ना कहीं डिसेंसी को अपना बिजनेस मॉडल बनाइएगा। हम जैसे पागल लोग मिल जाएंगे आपको कहीं हर मोड़ पे, लेकिन इसी से हमारी दुनिया, हमारे बच्चों की दुनिया बेहतर हो पाएगी। हमारे बच्चे जिस दुनिया में बड़े हो रहे हैं वो थोड़ी बेहतर हो पाएगी कि उसमें उनको खराब कंटेंट नहीं देखने सुनने को मिलेगा, बदतमीजी भरी बातें नहीं देखने सुनने को मिलेंगी। जो हवा जिसमें वो सांस ले रहे होंगे और जिसका सबूत है ये शहर, शायद थोड़ा बेहतर होगी। तब ये यात्रा पूरी होगी, या कम से कम एक नई यात्रा की ओर चल पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के पास सवाल है तो मुझे खुशी होगी जवाब देने। Any questions? None? Good. Okay, we have. This is a big hall. Hi Neelesh, this is GK from Bloom Techno Private Limited. First of all, thank you very much. I have been listening to your stories on the SM, and I'm honored to see you personally today. My question to you is that what is that silver line between, when you grow in life and you need to have numbers on balance sheet versus ethics, integrity, compassion? It's a tough boat always, most of the time. I am of firm opinion what you just said. It's correct. When will our society start honoring integrity? So what is that right balance that you don't compromise numbers and you don't compromise integrity? Thank you. I think that this question is at the heart of everything. I am facing and troubled by this question every day, and the solution I found is as follows. Where is the money coming from? Who's signing the check? So I'm saying, okay, my user trusts me. Can my user give me a small amount of money if I tell him or her that the onus is on you to keep me honest? Because I'm making a very honest effort. And I have a belief in my user. Let's see over the next year or so if this succeeds. Because I am doing the biggest experiment of my life over the next year, where I will ask my users to fund, rather than some person whose beliefs, whose hunger for profits will lead this. I want to make this hugely profitable for sure. But वो जो औरत डलिया बना रही उसको कुछ मिला कि नहीं, उसका सवाल यही आएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है, वो जो ब्लॉकचेन हमको बताएगी, और वो जो सोशल मीडिया पे जाना है वो टेक्नोलॉजी बताएगी. सो आई फील it's a very tough one, but I'm going to try. There's no other way for me. There's no other option for me. First of all, mind-boggling. For a little while, I was sitting here and thinking, what is this guy talking about?
मैं यहाँ आज आया था जोहो के बारे में जानने के लिए, और सुबह जब मूर्ति साहब ऊपर गए तो मैंने कहा व्हाट अ स्टेटमेंट. एंड माय ओनली क्वेश्चन टू यू इज व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. आई मीन दिस इज अ टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस और मेरा दिमाग घूम रहा है. तो कौन लेकर आया आपको यहाँ? Uh, there's no secret to that. I've known Neelesh for a while, heard his stories. I could sense there is a connect between the kind of company we want to run, we've been running, the kind of purpose-driven business we've been at, and the kind of purpose-driven business stories, ideas that he has. Incidentally, both of us are also from UP, so there is a connect. But that's pretty much it. I'm meeting him for the first time in person, I'll be honest. So that's all it is. Thank you. Thank you so much. One more question over there. Hi, Neelesh. Thank you very much for this wonderful, inspiring talk. When I drive back sometimes in the late evenings, I hear you. मेरा नाम नीलेश मिश्रा and मैं कहानियाँ सुनाता हूँ. It's such a calming and soothing voice that relaxes you for the day. I am a coach myself. Just wanted to check that we all have a lot of happening during the daytime, right? A lot of professional, personal, a lot of disturbances are happening. But the moment you come on the mic, you have that same soothing and calming voice every day. How do you disconnect with that, which may inspire our audience too? Thank you. Recently, people have started coming to me and saying, we are also slowing down our life. So they also see what I'm talking about as not a piece of content, not a bottle of honey, but as a way of living life. And I feel that I have to be the biggest advocate of that. So that is the life I live. I think that over the last 10 years, I used to live in this city. I have internalized a lot of things. I have coached myself. I don't feel jealous anymore of anybody. It was a milestone for me that I arrived at a long time ago. I don't have, I mean, I like luxury and comforts, but I don't have greed, or certainly not the greed that will not let me sleep. So I feel that when I am at the mic, that is who I am. And I'm delighted that a lot of my listeners have said that हम आपको सुनते थे और सोचते थे आप कैसे होंगे, एक तरह के व्यक्ति की कल्पना की थी और आप वैसे ही हैं. तो फिर कुछ फर्जी नहीं है माइक पे अचानक ही नहीं, हेलो मैं हूं नीलेश मिश्रा, मुझे नहीं बनना है. मैं जैसा हूं, मैं कई बार कहानियां सुनाते सुनाते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. इस सेशन में भी अगर आपके कैमरास मजबूत रहे होंगे तो कुछ वक्त ऐसे थे जब मेरी आंखों में आंसू थे. If I can be true to myself and authentic, I think, and that is relevant to everybody, the authenticity. My biggest fear is the day when I start sounding like a voiceover. So I don't have to do anything else when I'm at the mic and I'm becoming another person, because it's this little thing I want to also add. दूसरा बन के दुनिया को देखना, becoming the other, that is one of the greatest prisms of my life. Every day I become someone else. I become a 45-year-old woman. I become an 80-year-old grandfather. I become a 16-year-old boy who is misunderstood, who might seem cantankerous. जो बेटी से नाराज हो रहे कि वो 6 बजे के बाद क्यों घर आई. जब आप दुनिया को उसकी नजर से देखते हैं तो दुनिया बेहतर समझ आती है. And I feel that because I've been able to teach myself to do that, to become the other, every time in every single meeting I've
This is a great tool. If you're in marketing, it's a superpower. If you can understand what the other person's need is, what the world looks like from that person's seat. As a creator, that's all I do. And I feel that that has taught me my other superpower, which is empathy. तो वही हूँ जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ. Thank you. Go ahead, man. One last question over here. Go ahead, please. नमस्कार नीलेश दा, मेरा नाम आफरीन जमान है, मैं कैलकाटा से हूँ और मुझे बस परसों पता चला था इस इवेंट के बारे में और मैंने सिर्फ आपका नाम देखा. स्लॉट्स बुकिंग बंद हो गई थी एंड आई मेड श्योर कि आई गेट अ पास हियर. सोर्स लगाया है. से तो आई थिंक ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कब से कहानियाँ सुन रहे हैं, कब से आपका काम फॉलो कर रहे हैं. बस एक छोटी सी सवाल ये है मेरी कि रिसेंटली हैज़ बीन माई बिजनेस टू. तो लास्ट 30 साल से मेरी पैदाइश से लेके अब तक काफ़ी रिपरकशंस मैंने झेले हैं, इंटीग्रिटी, अपनी एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स को रखते हुए. ठीक है, तो आपसे ये पूछना है कि हाउ डू यू हैंडल दैट. एक अपने जो एथिक्स को सामने रखकर आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत लोगों की बातों से उन सबको सीखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो आप कैसे करते हैं? My biggest superpower is saying no and walking away from a table, however much amount of money is kept on it. I have done that too. I've been a CSR consultant and crores and crores of हाँ. वो कीमत come into my table. आपको अगर चुकानी है, एक गोरेपन की क्रीम वाले मेरे पास आए, बोले कि ये 2.5 करोड़ की डील है, आप कहानियां सुना दीजिए. ये नहीं सुनाई. मैं पब्लिक एनिमी नंबर 1 हूँ ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म्स का जो ये डर बेचते हैं, जो फोमो बेचते हैं. पब्लिक एनिमी नंबर 1. मैंने रिसेंटली रिजाइन करा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से. तो मेरे को वो आया एक ये कि सर इतने लाख की कैंपेन है, आप कर लेंगे क्या. तो मैंने वो जिन बालिका ने भेजा था उनका नंबर डिलीट किया, कंपनी कितने लाख का था वो डिलीट किया. मैंने कहा आई डोंट वर्क विद बैजूस. Philosophical differences, but thank you for considering. And then I put it on social media. I did that because it was very important for people to know कि ये आदमी बहुत से लाख रुपए सैक्रिफाइस करने को रेडी है, ये बातें नहीं कर रहा है सिर्फ. तो मुझे लगता है कि वो कीमत तो चुकानी पड़ेगी. और 10 साल में जो कमाया है वो यही है कि वो मोनेटाइज भी होगा. जब आप अगर आप क्या ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं स्लो मूवमेंट के जरिए, जिसमें हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हमारे 10 मिलियन 100 मिलियन लोग हों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो इसमें विश्वास करें और बोलें कि हाँ आप अच्छा काम करो ना, हम आपके साथ खड़े हैं. बिल्कुल. तो मैं यहाँ पे सबके सामने बोलना चाहूँगी, मैं हूँ यहाँ पे स्लो मूवमेंट के लिए. किसी भी ज़रूरत पड़े, जो आपने कहा कि एक वो दलिया या कुछ भी वो बना के यूएस भेजना और उनको सोशल मीडिया में कुछ करना है, आई एम द पर्सन. अगर उनको कुछ भी ज़रूरत हो कहीं पे भी, मैं भी आई हैव मूव टू दिल्ली रिसेंटली. थैंक यू. आसपास में कुछ भी होगा, आई वुड बी देयर टू हेल्प. मैं आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी बता देता हूँ और आप में से और भी लोग. मैंने एक चिट्ठी छोटी सी नोट लिख के रखी है कि बिजनेस इज माय मॉडल टू, और मेरा नाम और नंबर है, वो मैं आपको दे देती हूँ. So आप मुझे neelesh@turnslow.com NEELESH @turnslow पे संपर्क करें. अगर मुझे ताकत देना चाहते हैं, मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, तो जरूर करें. और दैट इज द शॉर्टेस्ट कट टू मी. मैं आप फोन उठा के आपसे बात करूंगा, हाँ बताओ भाई क्या कर सकते हो. तो थैंक यू वेरी मच. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और हैव अ ग्रेट डे. Thank you. That was lovely. Thank you so much, sir.